اقدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند عزیز و ہمارا خداوند یسوع مسیح قبر میں سے جیتا اور ہم مقدس اگسطس کے الفاظ کے مطابق پاسکائی لوگ کہلائیں۔ آج ہم سب عید پاسکا کی خوشیوں کو منانے کے لیے علاقائی طور پر جمع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے تقریباً 8 علاقوں میں مقدس جیروم بائبل سکول کے حوالے سے ہمارے بچے کلام کو پڑھتے اور اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام سے روشن کرتے ہیں۔ آج اپنے تمام سکولوں کے ساتھ مل کر ہم نہ صرف کلام اقدس جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے، بلکہ خدا کی حمد و ثنا بھی کریں گے جس نے اپنا کلام ہمیں دیا، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنا ہے۔ آج کی اس خاص عبادت میں میں اپنے ڈائسس کے ویکر جنرل ویری ریورنڈ فادر عابد تنویر کو اپنے درمیان خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ میرے ہم خدمت ریورنڈ فادر فرحان سلطان اور آپ تمام مومنین کو جو یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی حمد و ثنا کر سکیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، اپنی زندگیوں کو خدا کے قدوس نام کے ساتھ جوڑیں تاکہ آج کی اس عبادت میں لائیو طور پر شامل ہو سکے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم اس سچائی نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو خدا اس قدر رحیم، مہربان اور شفیق ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں سے اور ہماری ساری ناراضگی سے ہمیں پاک کرے گا۔ آئیے انہی خیالات کے ساتھ آج کی اس پاک عبادت کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں تاکہ واجب طور پر آج کی یہ اقدس قربانی خدا کے حضور گزران سکے۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ فرشتہ کماری سب فرشتہ مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا ہمارے پاس سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ خدا تو قدیم زمانے سے اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا رہا اور انہیں ہدایت کی کہ بعد کی نسلوں کے لیے سب کچھ مرحوم کرے۔ تیری مہربانی سے ہم سنتے اور پڑھنے کے قابل ہیں، بخش دے کے ذوق سے سنیں اور پڑھیں اور جی جان سے سمجھیں اور عمل میں لانے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ تیرے بھیجے ہوئے کلمہ کی ہم شکل بنے اور اسی کے ساتھ ایک دن تیرے حضور میں تیرے وعدوں کے وارث بنے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ایسا بیٹھیں گے، بڑے ایمان کے ساتھ خدا کا کلام سنیں گے۔ سب کہن اعظم اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقے کے تھے حسد سے بڑھ کر اٹھے اور رسولوں پر ہاتھ ڈالے اور انہیں حبس عوام میں بند کیا،
मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ और हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की बातें सब लोगों को सुनाओ। ये सुनकर वो सुबह हैकल में गए और तालीम देने लगे। इतने में काहन आज़म और उसके साथियों ने आकर अदालत आलिया और बनी इसराइल के तमाम दीवाने खास की मजलिस की और कैद खाना में कहला भेजा कि उन्हें लाए। मगर प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौट कर खबर दी और कहा कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर दरवाजे पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो किसी को अंदर ना पाया। जब हैकल के सरदार और सरदार काहनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में सरासिमा हुए क्या इसका क्या अंजाम होगा। इस पर किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद खाना में डाला था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब हैकल का सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमें संसार ना करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद उसका 3रा बाब और 16वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दी, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के फर्जंद और नूर के नजदीक नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम नमाया हो। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नजदीक आता है ताकि उसके काम नमाया हो, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। अंजिल मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। अगले ज़माने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त बवक्त और तरह बतरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया। मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज नहायत शादमानी और खुशी का दिन है। हम पाशका की खुशी मना रहे हैं। पाशका हमारे ईमान का मरकज़ है। पाशका मसीहत का आगाज़ है। यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हम मसीहों के लिए तसल्ली और खुशी और उम्मीद का बाइस है। आज
میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ریورنڈ فادر پیٹر شگارا صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے علاقے کے تمام بچوں کو جو سینٹ جیروم اسکول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 8 سینٹر سے جو ہے بچے تشریف لائے ہیں، 8 جگہوں سے کیٹیکزم جو کہ انتہائی جو ہے ضروری جو ہے تعلیم ہے، کہ آج انہوں نے اس خوشی کے موقع پر جب ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، کہ پاشکا جو ہے ایک بہت بڑی عید ہے جس کو ہم 50 دن تک مناتے رہتے ہیں، تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فادر جی کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی روحانی بیداری کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت اور ایک منفرد پروگرام جو ہے ترتیب دیا ہے، تاکہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان بڑھے، ہمارے بچوں کی وابستگی پاک کلام کے ساتھ ہو، ہمارے بچے پاک کلام کو پڑھنے کا شوق رکھیں، ہمارے بچے کیٹیکزم یعنی مسیح تعلیم کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جب جیسے کوئی ایک گھر تعمیر کرتا ہے تو اس کی بنیاد رکھتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو اپنا گھر بناتا ہے وہ اس کی بنیاد ریت پر نہیں رکھتا، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے مضبوط چٹان پر رکھتا ہے، تاکہ آندھی طوفان یا کوئی بھی کسی قسم کا اور جو ہے کوئی کسی قسم کی آفت آئے تو وہ گھر نہ گرے۔ تو اسی طرح ہمارے ایمان کا بھی جو ہے ایک بیج ہے جو بویا جاتا ہے، اگر جو ہے مضبوط ایمان ہے تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے گر نہیں پائیں گے، مشکل آئے، چیلنج آئے یا کوئی بھی بیماری آئے یا کوئی دیگر جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں، تو پھر وہ رکاوٹیں ہم پر قابو نہیں پا سکتی ہیں، پھر ہم فتح پائیں گے۔ تو لہذا اس لیے میں سینٹ جیروم گروپ کے تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اس گروپ میں بہت کچھ سیکھیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ جو ہے بہت زیادہ ترقی کریں گے اور خداوند میں بڑھیں گے۔ آج جب کہ پاک کلام کی بات ہے، کہ پاک کلام کو پھیلانے کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں نے زندہ یسوع کی گواہی دی ہے، شاگردوں نے اس کلام کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جو ہے پہنچایا ہے۔ تو ابھی جو ہے ہمارا فرض ہے کہ جنہیں مخصوص کیا جاتا ہے اور جو کلام کی بشارت کے لیے مسا کیے جاتے ہیں، ہمارے مبشران انجیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کاہن ہیں اور دیگر راہبانہ جماعتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسیحی اسکول چلاتے ہیں، مسیحی اسکول جو ہے ان کا جو ٹیچرز ہیں، تو اب یہ فرض جو ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس فرض کو جو ہے احسن طریقے سے نبھائیں اور خدا کے کلام کا پرچار کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ بائبل مقدس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ شائع ہونے والی، یعنی سب سے زیادہ شائع جو ہے بائبل مقدس کی ہے۔ اب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا یہ نیا ایڈیشن ہے، اس کے پہلے جو ہے ہمارے پاس دوسرے ایڈیشن تھے، تو لیکن شاید جو کم عقل ہیں، جن کے پاس نالج نہیں ہے، جو بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں
اور जिन के पास बाइबल का इल्म नहीं है वो ला इल्मी के बदौलत ये कहते हैं कि बाइबल जो है वो तब्दील हो गई है, बाइबल जो है वो चेंज हो गई है। खुदा का कलाम जो है अब तक यकसा है, ये कलाम आज और कल बल्कि अब तक जो है ज़िंदा है और यकसा है, और ये वो कलाम है जो इंसानों की ज़िंदगी बदलता है। आप दुनिया में जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ें, आप जो है इंटरनेट पे जो है जितना मर्ज़ी नॉलेज ले, लेकिन अगर किसी शख्स की ज़िंदगी को बदला जा सकता है, अगर कोई शख्स जो है हकीकी तौर पर बदला है, तो वो ये किताब है। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने इस कलाम के लिए जो हम तक पहुंचा है। हमने आज शुरू में जो है अब्रानियों के नाम खत में हमने उसके पहले बाब की पहली 2 आयत पढ़ी हैं कि अगले ज़माने में खुदा ने तरह बतरह से और आखिरी वक्त में उसने अपने बेटे के ज़रिए से हम कलाम हमारे साथ हम कलाम हुआ है। और याद रखें कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातचीत करता है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे हम कलाम होता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ हम कलाम होते हैं, हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो आज जो है जो खुदा का कलाम हमने सुना है, खुदा का कलाम जो है हमें दावत देता है और हमें बताता है कि मुक़द्दस यूहन्ना अंजील नवीस जो है लिखता है कि खुदा ने हमसे ऐसा प्यार किया है। हमने पाशका जो है कि ईद मनाई है रिसेंटली, कि पाशका जो है मैंने पहले बताया कि हमारे ईमान का मरकज़ है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है हमारे लिए खुशी है, और ये एक ऐसी खुशी है जो हम 50 दिन तक मनाते हैं, बल्कि हर इतवार को जो है मिनी ईस्टर कहा जाता है, छोटी ईद है। तो ये ईद जो हम मनाते हैं ये हमारे ईमान का जो है मरकज़, और यहाँ से मुनादी शुरू होती है। और कि पाक कलाम में मरकूम है, मुक़द्दस पौलुस लिखते हैं कि अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी और तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है। तो लिहाजा हम ज़िंदा यीशु के पैरोकार हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमें उसकी आवाज़ को भी सुनना है, और जिसके ज़रिए से जो है हम जो है और ज़्यादा जो है खुदा में मजबूत हो सकते हैं। इसलिए मैं जो है बड़ों को और नौजवानों को, बच्चों को, सबको जो है इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें। आपके पास बाइबल का नॉलेज होगा तो आप जो है अपने ईमान के मुहाफ़िज़ हैं, अपने ईमान का दफ़ा कर सकते हैं। आज के दौर में ज़रूरत है कि इस तरह के जो है हमारे छोटे छोटे सेंटर जो हैं वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाए और बच्चों के ईमान को मजबूत किया जाए। आज जब हम पाक कलाम में पढ़ते हैं तो अमसाल की किताब में लिखा है, उसके 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे मेरे कलाम की तरफ ध्यान लगा और मेरी बातों की तरफ अपना कान माइल कर, अपनी आंखों से उन्हें अलग ना कर और अपने दिल के बातन में उन्हें रख। तो जो पाक कलाम हम पढ़ते हैं हम उस पर जो है ध्यान लगाएं और उसे अपने दिल में रखें। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस कलाम को जो हम पढ़ते हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएं। एक शख्स जो है वो कहता है कि मैंने बाइबल मुक़द्दस जो है उसका प्रचार करना है। तो वो सुबह निकलता है और जो शख्स उसे मिलता है उसे कहता है कि मैंने आपको बाइबल सुनानी है। तो उसने देखा कि एक शख्स जो है बहुत जो है सर्दी की वजह से जो है कांप रहा है, उसके पास खड़ा हुआ तो उसे कहता है कि मैंने आपको बाइबल सुनानी है, क्योंकि उसका ये मिशन था कि मैंने बाइबल का प्रचार करना है। तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है तो पहले मुझे खाना, और उसके पास खाना, तो उसने उसको अपना खाना दिया और उसने खाना खा लिया।
और फिर क्योंकि वो सर्दी की वजह से कांप रहा था, उसने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है। उसने अपना कोट भी उसको दे दिया और फिर उसे कहा था मैं बाइबल सुनाऊं, क्योंकि उसका मिशन ये है कि उसने बाइबल सुनानी है। तो इसके बाद तीसरी दफ़ा फिर जो है उसने उसे कहा कि मैं आपको बाइबल सुनाऊं। तो उसने कहा कि बाइबल तो मैंने आपकी ज़िंदगी से सीख ली है, जो बाइबल आप सुनाना चाहते हैं वो तो मैंने आपकी ज़िंदगी से सीख ली है, कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं परदेसी था जो है मुझे अपने घर में उतारा, और बेयारो मददगार था तूने मेरी मदद की। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल जो है हम अपनी ज़िंदगी से सुनाएं। बेशक जो है खुदा का कलाम जो है हमें पढ़ना है, लेकिन इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे अमसाल की किताब में फरमाया गया है, इस पर ध्यान लगा ऐ मेरे बेटे, मेरे कलाम की तरफ ध्यान लगा और मेरी बातों की तरफ अपना कान जो है माइल कर, और अपनी आंखों से उन्हें अलग ना रख। तो इसलिए अपने सामने जो है खुदा के कलाम के रखना, जहाँ भी जाना है वहाँ पे। तो क्योंकि लिखा है कि फिर लोग जानेंगे, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे कामों से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हमारे अच्छे काम हैं तो वाकई जो है हम यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम को जो है अपनी ज़िंदगी से दूसरों तक लेकर जाएं। किसी टीचर से सवाल किया गया कि आप का जो है आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, तो उसने कहा कि मैं मसीही। फिर उसने कहा कि नहीं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? तो उसने फिर कहा कि मैं मसीही हूँ। उसने फिर तीसरी बार जो है सवाल किया कि आपका जो है आपकी रोज़ी कमाने का जो है ज़रिया आमदनी क्या है? तो उसने तीसरी बार फिर ये कहा कि मैं मसीही हूँ। उसने कहा कि मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, कैसे जो है रोज़ी कमाते हैं क्या? उसने कहा कि मैं टीचर हूँ, मेरा शोबा जो है उस्ताद का है, लेकिन मैं फुल टाइम क्रिश्चियन हूँ, फुल टाइम कि मैं मसीही हूँ। तो इसलिए हम जिस भी शोबे में हैं, जो भी बेशक काहिन है, सिस्टर है, मुनाद है, या कोई भी लीडर है, जो भी आप टीचर्स हैं, तो लेकिन हमारी शनाख्त जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं मसीही हूँ। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मसीह के कलाम को अपनी ज़िंदगी से जो है दूसरों तक लेकर जाएं। और फिर दूसरी बात के जैसे फादर जी ने ये बच्चों को इकट्ठा किया है ताकि बाइबल क्विज़ हो, तो बाइबल पढ़ेंगे तो फिर जो है हम सवालात के जवाबात देंगे। बाइबल पढ़ेंगे तो हम उन तमाम सवालों के भी जवाब दे सकेंगे जो आज के दौर में हमारे लिए चैलेंज है। मिसाल के तौर पर जब लोग जो है हमारे ईमान पर जो है वो मुख्तलिफ तरह से तनकीद करते हैं, कि जब हम मुक़द्दसीन की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम बुत परस्ती कर रहे हैं। हम मुक़द्दसीन के जो है अगर अपने चर्चेस में, अपने अदारों में मुजस्समे रखते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम जो है बुत परस्ती करते हैं। या मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर जो है हम तज़ीन अकीदत के साथ जाते हैं और अपनी सिफारिशें और मुनाजात पेश करते हैं, तो कम अकल जो लोग जो है वो ये समझते हैं कि शायद हम जो है खुदा को भूल रहे हैं। मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है, मुक़द्दसीन वो लोग हैं जो हमें खुदा के करीब लाते हैं, जिनके ज़रिए से हम और खुदा के करीब आते हैं। और मुक़द्दसीन की रिस्पेक्ट जो है ऐसे ही है जैसे हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम और लिहाज और अदब करते हैं।
क्योंकि मुक़द्दसीन जो है उन्होंने अपने आप को कुली तौर पर खुदा के कलाम के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। वो दुनिया में रहते हुए दुनिया के नहीं थे, बल्कि वो दुनिया में रहते हुए आसमानी मखलूक कहलाए कि वो फरिश्तों की मानद है। उनकी ज़िंदगी जो है मुक़द्दस। हम देखते हैं कि अपने दौर में देखें कि पोप जॉन पॉल II को लोगों ने उसी वक्त से शुरू कर दिया कहना कि ये मुक़द्दस हैं। मदर टेरेसा का जिक्र आपने सुना है, और मदर टेरेसा भी जो है लोग उसी वक्त कहते हैं कि ये लिविंग यानी जिंदा मुक़द्दसा है। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसलिए मुक़द्दसीन जो है वो हमें खुदा के करीब लाते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि खुदा से जो है हकीकी इश्क जो है वो हमारी निजात का बाइस है। तो आज भी ज़रूरत है कि हम बाइबल मुक़द्दस पढ़कर और अपनी कलीसिया की तालीम पर अमल करके हम उन लोगों का मुकाबला करें और उन्हें बताएं कि मुक़द्दसीन जो है हमें खुदा के करीब लाते हैं, और जो हमारे मुजस्समे हैं वो खा मुक़द्दसा मरियम का है, मुक़द्दस यूसुफ का है या दीगर मुक़द्दसीन का है, तो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि जिस तरह मैं आम सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि घर में जो छोटे बच्चे हैं तो उनको बताया जाता है कि ये दादा की तस्वीर है, ये दादी है, या इसी तरह जो दीगर बुज़ुर्ग जो है या माँ बाप हैं तो उनको बताया जाता है कि ये बाप और माँ हैं। शायद कि जो पहले जो है खुदावंद में सो जाते हैं, तो बाद में जब बच्चे छोटे होते हैं उनको बताते हैं। और ऐसे भी कई दफ़ा जो है हालात होते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, बाप की या माँ की डेथ हो जाती है, तो बाद में बताया ये आपकी अम्मी की तस्वीर है। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है या नहीं है? जवाब दें, ऐसे है या नहीं है? तो हम जो है अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि ये मुक़द्दसा मरियम है, जिसके वसीले से जो है खुदा का मंसूबा पूरा हुआ है, जिसने निजात को जो है दुनिया में लाने का बाइस बनी है। 2 दिन पहले जो है हमने 8 अप्रैल को ईद बिशारत मनाई है। ये जो गुज़रा हुआ मंडे है, सोमवार जो है हमने ईद बिशारत मनाई कि खुदा का फरिश्ता जो है वो मुक़द्दसा मरियम के पास आता है और खुदा का पैगाम देता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और मुक़द्दसा मरियम हैरान होती है, और फिर मुक़द्दसा मरियम ने गौर व होश के बाद, सोच विचार के बाद जो है फरिश्ते से कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूँ, और ये कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। तो इसलिए मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, कि बाइबल मुक़द्दस में जो है हमें पता चलता है कि खुदा का मंसूबा कैसे जो है वो पूरा होता है। फिर इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी खुदा का मंसूबा है। हर एक शख्स जो इस दुनिया में आता है उसके लिए खुदा का एक प्लान है, मंसूबा है। तो हमने जो है उस मंसूबे को पूरा करना है, लेकिन जब तक हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते हैं तो हम रूहानी तौर पर मजबूत नहीं हो सकते। खुदा का कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। तो ये कलाम हमें गाइड करता है कि हमने किस सिमत को जाना है और क्या करना है। और फिर जब बाइबल मुक़द्दस हम पढ़ते हैं तो उसके ज़रिए से जो है हमारी ज़िंदगी भी तब्दील होना चाहिए। मैं नहमिया की किताब उसके 8वें बाब के चंद आयात जो है आपके सामने जो है पेश करना चाहता हूँ। और लिखा है कि अज़रा का लोगों के सामने शरीयत का पढ़ना, और जब 7वां महीना हुआ तो बनी इसराइल अपने अपने शहरों में थे, और सब लोग एक तन होकर उस फराख जगह में जो पानी के फाटक के आगे है जमा हुए। और उन्होंने अज़रा फ़कीह से कहा कि मूसा की शरीयत की किताब लाए, जिसका इसराइल के खुदावंद ने हुक्म दिया है।
तब 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन, ज़रा आपने गौर से सुनना है कि यहाँ पे जो है सारा कद्दोकाल जो है बयान किया गया है कि 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन आदमियों और औरतों की जमायत और सब के आगे जो सुनकर समझ सके शरीयत लाया। क्या लाया? कौन लेकर आता है? अज़रा काहिन। वहाँ पे मर्द हैं और औरतें हैं और वो सब लोगों के सामने खुदा की शरीयत लेकर आता है। और पानी के फाटक के आगे के मैदान में सुबह से लेकर दोपहर तक आदमियों और औरतों और सब असहाब फ़हम के सामने उसमें से पढ़ता रहा। यानी सुबह से लेकर जो है वो दोपहर तक जो है वो शरीयत की किताब पढ़ता रहा है और सब लोग शरीयत की किताब सुनते रहे। और अज़रा फ़कीया एक 24 मेंबर पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा था। यानी ये एम्बू, ये डाइस जो है ये खुदा का कलाम सुनाने के लिए है। तो इसी तरह अज़रा काहिन जो है वो शरीयत लेकर आता है और सुबह से लेकर दोपहर तक जो है वो खुदा की शरीयत, खुदा का जो कलाम है वो लोगों को पढ़कर सुनाता है और लोग जो है जो समझ सकते थे वो उस कलाम को सुनते रहे। और अज़रा फ़कीया एक 24 मेंबर पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हुआ और उसके साथ उसके दाएं तरफ मेतिया और शामे और अनाया और औरिया और हल्किया और मिसिया और उसके बाएं तरफ फिदाया और मिशाइल और मिकिया और हाशम और जुब्शदाना और ज़करिया और मुस्लाम खड़े थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊंचा था। तो जब उसने उसे खोला सब लोग खड़े हो गए। यानी खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के कलाम के लिए जो है सब लोग जो है खड़े हो गए। और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा तो तमाम लोगों ने अपना हाथ उठाकर जवाब में आमीन आमीन कहा। तो जब उसने खुदा का कलाम सुनाया है, लोगों ने कलाम को सुना है, तो लोगों ने जवाब दिया है कि आमीन आमीन, यानी वो इस कलाम को कबूल करते हैं। तो तमाम लोगों ने अपना हाथ उठाकर जवाब में आमीन आमीन कहा और ऊंधे मुंह ज़मीन तक झुककर उन्होंने खुदावंद को सजदा किया। ऊंधे मुंह झुककर उन्होंने खुदावंद को सजदा किया। और यीशु और बानी और शरीफ या और यामीन और अकूब और शब्ताई और हुदिया और मिसिया और कलितिया और असरिया और बोसाब और हनान और फलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते थे। और लोग अपनी अपनी जगह में खड़े थे और उन्होंने खुदावंद की शरीयत की किताब में से साफ साफ पढ़कर मानी बताए तो उन्होंने इबारत को समझा। तो देखें कि उन्होंने कलाम को सुना है और फिर उन्होंने बताया है और फिर वो लोग जो हैं समझे हैं। तो इसलिए अगर हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए आते नहीं हैं, अगर फादर जी आप भी जाते हैं, आते हैं इबादत के लिए आते हैं, अगर आप इबादत के लिए आएंगे तो आप खुदा का कलाम भी सुनेंगे, आप उसको समझेंगे भी। तो अगर आप हमारा ये शौक़ ही नहीं है तो फिर कैसे जो है हम समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने का शौक़ जो है अपने दिलों में पैदा करें। अपने घर में हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस को खोलें। जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ नहीं सकता है वो बाइबल मुक़द्दस को हाथ लगाकर बरकत पा सकता है। बाइबल मुक़द्दस को जो है उसकी तख्त नशीनी करें अपने घर में और बाइबल मुक़द्दस से प्यार करें, क्योंकि ये वो कलाम है जिसके ज़रिए से जो है हम खुदा की और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुदा के कलाम को पढ़ें। और शायद बहुत दफ़ा जो है इस तरह भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि मैंने
चर्च भी जाता हूँ और शायद रोज़े भी रखते हैं और दुआ भी करते हैं, तो फिर भी जो है इसके बावजूद हमारी रूटीन जो है, हमारी डगर जो है वहाँ की वहाँ होती है। एक मैं कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें जो कहानी लिखने वाला बताता है कि एक शख्स जो है बाकायदा चर्च जाता था, बाकायदा लगातार चर्च जाता था, लेकिन कुछ अर्सा उसने चर्च जाना छोड़ दिया और उसने एक अखबार में नोट भेजा कि मैं गुज़श्ता 30 साल से चर्च जाता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जो है, उसने कहा कि मैं 30 साल में बहुत सारे पैगाम सुने हैं, लेकिन अब मैंने चर्च छोड़ दिया है। उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जब उसने ये कॉलम अखबार में लिखा तो किसी दानिशवर शख्स ने जो है उसको पढ़ा, उस पर गौर किया और फिर उसने उस कॉलम का जो है जवाब दिया। तो 2-3 हफ्ते के बाद जो है उसने एक और जो है इबारत लिख कर जो है उसी जो है अखबार में भेजी। उसने कहा, ये गौर से सुने ज़रा, उसने कहा कि मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं और मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं और मेरी बीवी ने मेरे लिए उम्दा से उम्दा खाने बनाए हैं। उसने कहा कि बहुत सारे खाने बनाए हैं, लेकिन शायद वो मुझे ये तो याद नहीं है कि मेन्यू क्या था, उसमें जो है कौन कौन से खाने जो है मैंने खाए, लेकिन मुझे ये इल्म है अगर मैं ये अगर खाना ना खाता तो शायद जो है मैं कब का जो है मर गया होता, क्योंकि उसने कहा कि अगर ये मुझे खाना ना मिलता तो मैं मर गया होता। तो उसने उसका जवाब इसी तरह उसने कहा कि हम इस रूहानी ग़िज़ा के बगैर जो है हम मुर्दा हैं, कि जो है इसका असर क्या हुआ। उसने दोबारा ये जो है कॉलम जब पढ़ा, उस शख्स ने जिसने पहले लिखा था, जब उसने ये पढ़ा तो नेक्स्ट संडे को वो सबसे आगे बैठा हुआ था, सबसे आगे पहली लाइन में बैठा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि हर एक चीज़ का जो है असर होता है। तो उसने फिर दोबारा से जो है चर्च आना शुरू कर दिया। तो याद रखें कि चर्च आने से, खुदा का कलाम पढ़ने से खुदा की बरकत नाज़िल होती है और फिर हमारा जो है खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बाइबल मुक़द्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बाइबल मुक़द्दस के दोस्त बनो। फ़ादर इमैनुअल आसी साहब हमारे बुज़ुर्ग फ़ादर हैं और उन्होंने पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरी जगहों पे जाकर भी बाइबल जो है प्रचार किया है और बाइबल कमीशन का जो है बहुत काम किया। और वो हमेशा कहते हैं कलाम के लाख दोस्त बनने में जो है वो कहते हैं कि कलाम के दोस्त बनो, कलाम को पढ़ो और कलाम को जो है औलाद दो, औलाद को कलाम दो, ये उनका नारा है। तो आज भी फादर जी ने जो है इस नशिस्त का एहतमाम किया है ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग जो यहाँ पे आए हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो घर के सरबराह हैं, वो बच्चों को बाइबल की तरफ राग़िब करें। बेशक मजहबी रहनुमाओं का भी काम है, जो मजहबी टीचर्स हैं उनका भी काम है, लेकिन सबसे पहली ज़िम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चों को जो है बाइबल, वो खुद भी बाइबल पढ़ें और बच्चों को भी बाइबल पढ़ने के लिए जो है राग़िब करें। और मैं आपको यही नसीहत करना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद ने ये शागिर्दों को हुक्म दिया कि तुम सारी दुनिया में जाओ और सब कौमों को अंजील की मुनादी, सब कौमों को अंजील की खुशखबरी दो। और याद रखो कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। लिहाजा दुआ है कि जिंदा यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है वो हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत करे और हम खुदा का कलाम पढ़कर, समझकर, सुनकर और उस पर अमल पैरा होकर जो है 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से
आमीन। आए अभी वक्त है कि अपनी ऐसे बनते दरख्वास्त खुदा बाप की हजूर में रखे। आशा करते हैं आज के दिन अपने तमाम इलाकों के बच्चों के लिए, उनके खानदानों के लिए कि खुदा अपने पाक कलाम की बरकत हमेशा इनके खानदानों पर और इनकी जिंदगी में नाज़िल रखे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ मांगे कि खुदावंद हमारी डायसिस फैसलाबाद के बिशप इद्रियास अहमद को कलीसिया के तरक्याती और पासमानी कामों के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ मांगे कि काहिन बरादरी के लिए कि खुदावंद हमारे डायसिस के काहिनों को बरकत अता करे और उनकी हिफाजत करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगे मेहरबान खुदा बाप आज के क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को बरकत दे। इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदा बाप इसे हिफाजत और इसे तरक्की अता करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा हमारी कीमत की कलीसिया को बरकत दे ताकि वो कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहे। अजीजों इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं इज्जत मौत पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावंद उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी अता करे। अजीजों इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि मेहरबान खुदा हमारे पैरिश को और पैरिश से ताल्लुक रखने वाले तमाम इलाकों को बड़ी बरकत दे और उनकी निगहबानी करे ताकि इंजील की बुशारत में हमारा पैरिश हमेशा तरक्की करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम सच्चाई के सरकश में ये दुआएं जो तेरी पाक हुज़ूरी बड़े ईमान के साथ रखी गई हैं तेरे सुन और कबूल कर और बख्श दे कि इनका सब तक पहुँचे मसीह हमारी खुदावंद के वसीला से। तो बैठेंगे और नसराने का गीत गाया जाएगा। मेहरबान खुदावंद खुदा अता करके हम अकीदत के साथ तेरे पाक कलाम की तिलावत करने से इस काबिल बने कि अपने आप को तेरे इकलौते बेटे के साथ तेरी नज़र करें जो हमेशा से हमेशा तक सुनता रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये बात बहुत दुरुस्त है। ये वाकई बात बहुत नहायत मुनासिब है कि दोस्त बाप के महान वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। उसी के जरिए नूर के फरजाद हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और अहले ईमान की खातिर आसमानी बादशाहत की बारगाहें खुल जाती हैं। उसके मरने से हमारी मौत नहीं रही और उसके जीतने में सबकी जिंदगी बहाल की गई। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मबूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए तहम तेरी हम दोस्त सुना करते हैं। लश्करों के खुदा आसमान और जमीन तेरे जलाल से मबूर है। आने वाले पर होश है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाले पर होश है। जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें। ऐ मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाकी तुझी से। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नसराने पाक मतबर्रक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने।
اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ پی لیا، دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پی، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک تو تو آئے۔ بس سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جینے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے اسقف اندریاس احمد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بنا سرکار جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کا بھی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ پھر اسی تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت کامل عزت اور تعظیم چاہیے ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم اپنی نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو اس خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے باپ تو دعا آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض سے بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچائے، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہو جائیں اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ سے ہے، آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسول سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی کو لے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی کو دیتا ہوں، تمہارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنے کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور ان سے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی خدا کے برے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سامنے یاد کر۔ یہ ہے خدا کا بر جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔
खुदा ने इतना नहीं कि तुम मेरे साथ जो कहने को मैं रुक पाता पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी आमीन। मेहरबानी करके तशरीफ रखें। जो पाक शख्स लेते हैं कतार बनाएंगे। पाक कलाम सुनकर और तेरे बेटे की कुर्बानी में शरीक होकर हम तेरी बख्शों के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि न सिर्फ हम में बल्कि तमाम बनी आदम में तेरे पाक कलाम का असर आलमगीर नजात का बाइस हो मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्लां यसु जान पा देंदियां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे